Good morning, students. In the last class, we discussed about magnetic field and field lines, and then we have covered a topic in which a magnetic field is produced around a current carrying conductor, which means that whenever we do have a current carrying conductor, there is always a magnetic field around it. So today what we are going to study is the force on a current carrying conductor in a magnetic field. How much amount of force is acted on the current carrying conductor whenever the current carrying conductor is placed in an external uniform magnetic field or any of the magnetic field. So here there is one activity in your book. We'll discuss this activity. Here this is current carrying conductor in which we have given a supply from this battery key, and the direction of current is moving from this side, and here this is a rod through which the current is passing, and this rod is kept inside a magnetic field. This is a horseshoe magnet in which we have kept a current carrying conductor. So whenever we'll keep a current carrying conductor in a magnetic field, then there will be a force acting on the current carrying conductor. Why it is so? Because अब देखो सिंपल सा फंडा है, whenever a current carrying conductor is there is a magnetic field around a current carrying conductor. अब एक magnetic field को हमने किसी दूसरे magnetic field के अंदर रखा, then there will automatically a magnetic force acting between the two magnetic field. So it is as similar as that. Whenever we'll keep one bar magnet and will bring another bar magnet close to the previous magnet, then automatically there will be a force acting between the two magnets, and it may be a attractive force or it may be a repulsive force. तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कंडक्टर की है और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इस हॉर्सशू मैग्नेट की है. तो जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगी, देन देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि ये मूवेबल है, ये थोड़ा लाइट है. That's why there will be a force acting on the current carrying conductor. Now, what are factors on which this force depend? So the factors on which the force depend is, if we'll increase the amount of current through this conductor, then automatically the force will get increased. मतलब अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो फोर्स इंक्रीज होगा. सेकेंड थिंग, इफ विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, देन ऑल्सो देयर विल बी अ ग्रेटर फोर्स विल बी एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर. And third point is the length of the current carrying conductor. If we'll increase the length of the current carrying conductor, then automatically the force experienced by the current carrying conductor will get increased. Now, in which direction it will be? So the force which is acting on the current carrying conductor is always acting perpendicular to the direction of magnetic field. सपोज ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसी का एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, एंड दिस इज अवर करंट कैरिंग कंडक्टर. सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, वो ऊपर की तरफ लगेगा. So like this way, the direction of the force will always act perpendicular to the direction of the magnetic field. इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ. वन मोर थिंग इज देयर कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स may get changed on changing the direction of current or the changing the direction of a magnetic field. अब देखो इस जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर ने, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फोर्स की डायरेक्शन किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी. इफ विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल कर दिया जाए और यहाँ पर साउथ पोल कर दिया जाए, तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन अगर अभी इस कंडीशन में ऊपर की तरफ लग रही है, और अगर हम पोलैरिटी चेंज कर देते हैं तो इसकी जो कंडीशन हो जाएगी, फोर्स नीचे की तरफ लगेगा. सो लाइक दिस वे इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. नेक्स्ट थिंग क्या है कि इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर हम यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन ये है, अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में कर देंगे, देन ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल गेट रिवर्स्ड, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट फोर्स डिपेंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, magnetic field strength, and the length of the conductor. These are the 3 points on which the strength of the force depend, or the magnitude of the force depend, and direction depends on the direction of magnetic field and the direction of the current. So these are some points which are very important. Now if we need to find out the direction of the force, then how we can find it? So for this there is one important rule known as
Fleming's left hand rule. This rule is very important in order to find out the direction of the force acting on a current carrying conductor whenever it has been placed in a uniform magnetic field or any of the magnetic field. तो अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलेगा. सो दिस इज वेरी सिंपल रूल in which if we'll stretch our thumb, middle finger and forefinger such that they are mutually perpendicular to each other. ये इस condition में रखना है that thumb is moving upward, this is the forefinger and this is the middle finger and they should be mutually perpendicular. ये आपस में perpendicular होना चाहिए, ये तीनों fingers आपस में perpendicular होना चाहिए. Now if this forefinger will show us the direction of magnetic field and this middle finger will show us the direction of the current, then automatically the direction of the force will be along the direction of the thumb. So this is what known as a Fleming's left hand rule, in which thumb will represent the direction of motion और this is the force, direction of the force, क्योंकि जिस direction में force लगेगा उसी direction में motion होगा. This is the direction of magnetic field, जिसको मैंने field लिखा हुआ है, and this middle finger shows the direction of the current, and all these three things are perpendicular to one another. So this rule is just meant to know the direction of the force whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field. तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर हमें force की direction पता लगानी है जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है तो उस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे? विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. ओके, सो यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताई. अच्छा, इसको याद रखने का एक और तरीका है. रिमेंबर दीज थ्री थिंग, MFC. दिस इज जस्ट अ वे टू रिमेंबर दिस थिंग. M स्टैंड फॉर मदर, F स्टैंड फॉर फादर एंड C स्टैंड फॉर चिल्ड्रन. नॉर्मली जो जनरली बात होती है, हम सभी के फैमिली में जो मदर की हाइट होती है वो थोड़ी छोटी होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन विद दैट ऑफ फादर और चिल्ड्रन. तो यहाँ पर ये थंब विल शो अस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिसको हम मदर से रिप्रेजेंट करेंगे. दिस फोर फिंगर विल शो अस द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिसको हम फादर से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसको हम मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द करंट. और नॉर्मली हम सभी की फैमिली में ये होता है कि मदर की हाइट छोटी होती है फादर से, और बच्चे नॉर्मली फादर से भी कई केसेस में फादर से थोड़े लंबे निकल जाते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला और दिस रूल दैट थंब स्टैंड फॉर मदर, मोशन, दिस फोर फिंगर स्टैंड फॉर द फील्ड एंड दिस मिडिल फिंगर स्टैंड फॉर द current. So we can say that M, mother, father, children, motion, field or current. This is the best way to remember the rule. So don't forget it. Now, whatever we have studied in this to know the direction of current, ये हमें कहाँ पर applicable होता है? There are certain devices like loudspeaker, electric motor, electric generator, जहाँ पर हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. Now we'll discuss next topic, electric motor. Now what is electric motor? It is just a simple device जो हम सभी लोग नॉर्मली अपने घरों में देखते हैं. जैसे इलेक्ट्रिक मोटर इज अ सिंपल डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. जब भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है तो हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं. इसके बेस्ट एग्जांपल हैं इलेक्ट्रिक फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर. और ये सारी चीज़ें क्या हैं? इलेक्ट्रिक मोटर ही होती हैं, इन विच वी आर जस्ट कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी सो दैट द रॉड विल स्टार्ट रोटेटिंग. सो दिस इज व्हाट नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर. नाउ which is the principle on which it works? It works on the principle of magnetic effect of electric, and that is the name of the chapter. That when a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it experience a force. जब भी हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो वो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है. तो दिस इज एक्चुअल द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. नाउ दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट and will understand the working as well as the construction of the electric motor. Now here we do have one circuit. यहाँ पर हमने क्या किया? एक coil ली है. ABCD is a coil which is a rectangular coil and it is made up of copper wire जो कि insulated है, मतलब उस copper wire के ऊपर कुछ coating कर रखी है so that current ना लगे. Okay, so ABCD is a coil of insulated copper wire. This is made up of insulated copper wire. इसके बाद now
वी हैव टू सप्लाई करंट थ्रू, वी हैव टू पास अ करंट थ्रू दिस कॉइल। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल सर्किट यूज़ किया है जहाँ पर हमने बैटरी यूज़ की है एंड बैटरी से हमने करंट पास किया। एंड हेयर वी डू हैव 2x and y, two conducting stationary carbon brushes. So x and y are the two stationary conducting carbon brushes, मतलब ये स्टेटिक हैं, ये मूव नहीं करेंगे, which slides over split ring P and Q। तो यहाँ पर ये x और y क्या है, these are the brushes। Now one more important thing is there, PQ। PQ are the split rings, they are the split rings and they are acting like a commutator। commutator का क्या फंक्शन है वो मैं बताऊंगा। Now what we have done, we have just placed a rectangular कॉइल ABCD इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वेन एवर विल पास अ करंट थ्रू दिस, तो इस वाली आर्म पर, आर्म AB पर, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अब इसमें यहाँ पर लगाएंगे हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से हम देखेंगे, उल्टे हाथ करके करना पड़ेगा। सो दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड थंब विल गो डाउनवर्ड। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पर हम देखते हैं, तो लुक एट हियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारे इसी रूल से हमने देखा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो दिस, ये जो आर्म CD है, CD के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रखा जिसमें से हमने करंट पास किया एंड वेन एवर द करंट विल पास थ्रू दिस कॉइल देन देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द टू आर्म्स ऑफ द कॉइल, जिसमें एक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और एक एंड पर ऊपर की तरफ या एक एज पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। देन द ऑटोमेटिकली दिस कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग, क्योंकि ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा, तो ये कॉइल हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हाफ रोटेशन दिस CD विल कम दिस साइड एंड AB विल मूव दिस साइड, ये पलट जाएगी, ऐसी हो जाएगी। नाउ वेन एवर द CD विल कम दिस साइड, तो ये CD जो ब्रशेस यहाँ पे लगे हुए हैं ये Q है, एक्सेल भी मूव करेगा और एक्सेल में क्या लगा है, स्प्लिट रिंग लगी हुई है। तो ये जो Q वाली स्प्लिट रिंग इस तरफ आ जाएगी और P वाली स्प्लिट रिंग दूसरे एंड पर पहुंच जाएगी। थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है इसको, कि जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था, यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। तो हाफ रोटेशन के बाद ये CD इस तरफ आ जाएगी और AB उस तरफ पहुँच जाएगी, तो इट विल बिकम DC एंड हियर इट विल B एंड A। अब ये नेक्स्ट हाफ साइकिल की बात आ रही है। तो हाफ साइकिल में क्या होगा, जैसे ये CD इस तरफ आ जाएगी देन इट विल बी DC, देन ऑटोमेटिकली दिस Q स्प्लिट रिंग विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द X ब्रश और यहाँ से फिर से करंट की डायरेक्शन यही हो जाएगी। देन द करंट की डायरेक्शन विल बी DC, D to C। तो करंट की डायरेक्शन D से C की तरफ होगी, आफ्टर हाफ साइकिल की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन B से A की तरफ होगी। तो अगेन देयर विल बी फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड एंड ऑन दिस साइड द फोर्स एक्टिंग विल बी अपवर्ड। तो ये कंटिन्यूसली घूमता रहेगा। अच्छा, इस कॉइल को हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, एक्सेल से भी कनेक्ट कर रखा है, और इस एक्सेल में अगर हम फैन की ब्लेड लगा देंगे तो ये हमारा फैन मूव करने लगेगा। अगर हम मिक्सचर का जो ब्लेड्स लगा देंगे तो वो मिक्सचर के जैसे बिहेव करने लगेगा। वॉशिंग मशीन में अगर लगा देंगे तो वॉशिंग मशीन मूव करने लगती है। सो दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ यूज़ की है, कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर का क्या यूज़ है। सो देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर। आफ्टर हाफ रोटेशन ऑफ द कॉइल अबाउट इट्स एक्सेस, इसी एक्सेस का हाफ रोटेशन की बात करते हैं। वही मैंने अभी बताया कि जब AB स्टार्टिंग में यहाँ पर थी, फिर ये AB हाफ रोटेशन के बाद इधर पहुँच जाएगी और CD इधर से इस तरफ आ जाएगी। तो उसकी करंट की डायरेक्शन को AB एंड पर या इस एंड पर हमेशा आगे इसी डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, कम्यूटेटर यूज़ करना पड़ता है। तो ये स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर क्या काम करेगा, पहले तो P कॉइल इस तरफ थी या P स्प्लिट रिंग इस तरफ थी, फिर जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ ये स्प्लिट रिंग इस तरफ पहुंच जाएगी और Q वाली नीचे से घूम के इस तरफ आ जाएगी। सो इन दैट मैनर देयर विल बी अ continuation to rotate the coil in the same direction. So this is the actual use of the split ring। और इसके applications मैंने बता ही दिए हैं कि application of electric motor it is used in washing machine, it is used in electric fan, cooler, and there are a number of examples in which the electric motor is used. So these topics are very important, and whatever we are studying in this chapter,
all these things you have to face in class 12th, so you have to pay extra attention on this. And in case if you do have any doubt in this chapter, then you can contact me on my WhatsApp number, and you can call me. My number is 94069555436, and I will mention it in the description also. So whenever you will find any sort of difficulties in understanding in any of the concept, then you can directly contact me on my number. Thank you.